BJP National President JP Nadda has slammed Congress over its manifesto. This comes after the Prime Minister launched a scathing attack on the Grand Old Party, stating that the manifesto bears imprints of the Muslim League. Reiterating Prime Minister Narendra Modi's stance, Mr. Nadda said that Congress has been rejected by the people, yet they are not leaving appeasement politics. He stated that he was surprised looking at the manifesto because to JP Nadda, it seemed like a Muslim League manifesto. He also asked Congress to clarify its stand on the alleged appeasement politics they are doing and the reservations mentioned in its manifesto. Let's in fact listen in to what JP Nadda had to say. के लालच में कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार नकारा है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से बरआमदा है और तुष्टीकरण की राजनीति से बाज नहीं आ रही है। मैंने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को देखा, मुझे आश्चर्य हुआ कि यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है। देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जिस मुस्लिम लीग ने 1929 में धर्म के आधार पर आरक्षण की बात कही थी, आज उसी बात को कांग्रेस पार्टी दोहरा रही है। यानी सत्ता की लोलुपता में, सत्ता के लालच में देश को कहां पहुंचाएगी कांग्रेस पार्टी, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आज माइनॉरिटी के लिए जिस तरीके से धर्म के आधार पर आरक्षण की बात हो रही है और जो 50% से अधिक आरक्षण की बात है, वो किसके लिए आरक्षण करने की बात कर रही है, कांग्रेस पार्टी को यह स्पष्ट करना पड़ेगा। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, देश भूल न जाए, यूपीए की सरकार में इन्होंने एक ऐसा कानून बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बनाया था जो पार्लियामेंट से पास नहीं हो सका, लेकिन कांग्रेस पार्टी की मंशा साफ हुई थी। ये मेजॉरिटिज्म के खिलाफ जिस तरीके की रणनीति और राजनीति कर रहे हैं और तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, देश ने इनको माफ नहीं किया है और आगे भी माफ नहीं करेगी। ये चाहते हैं कि देश फट जाए, लेकिन इनकी सत्ता की भूख समाप्त न हो। मैं यहां यह भी कहना चाहता हूं, मुझे राहुल गांधी जवाब दें कि वायनाड में नामांकन पत्र में के जुलूस में कांग्रेस पार्टी के झंडे क्यों गायब हो गए? ये तुष्टीकरण की राजनीति कहां तक जाएगी? सिर्फ मुस्लिम लीग को भाए ना, इस कारण से कांग्रेस पार्टी अपने झंडे तक को हटा दे। यह देश बांटने की जो चाल है और तुष्टीकरण के आगे जो घुटने टेकने का इनका रवैया है, इसको देश माफ नहीं करने वाला है। कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र के अंदर जिस तरीके से तुष्टीकरण के बारे में उन्होंने कहा है और जिस तरीके से उन्होंने आरक्षण के बारे में कहा है, उसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। देश जान को बताना पड़ेगा कि देश में इस तरीके की राजनीति जो सत्ता के लोलुपता में आप एक समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हो, उसको देश कदापि माफ नहीं करेगा। कांग्रेस को उसका जवाब देना पड़ेगा। My colleague Mehendi Garg joins us on the broadcast to give us more details on this. Mehendi, BJP National President JP Nadda has now slammed the Congress over its manifesto. Give our viewers more details on this. What has he exactly stated? Well, yes, Savri, back in the days, as we all saw, that Congress has released its manifesto and various schemes and various declarations have been done by the Congress party, but the war of words and major allegations have started being made by the Bharatiya Janata Party on the Congress's manifesto. And not only JP Nadda, but all the big leaders, as well as Prime Minister Narendra Modi has also taken a drive at the Congress's manifesto. And as we all heard right now, the JP Nadda was speaking, and he has said that the people of India, the public of India has rejected Congress party in later days and now also. And for the Congress's manifesto, he has compared this manifesto as if it's Congress's one or it's of Muslims League's manifesto.
So the religion politics have been started, and Bharatiya Janata Party is making a scathing attack on the Congress Party and the netas of all the party, and along with the manifesto. And they have been asking and wanting the declarations and different clarifications on the schemes and on the declarations that have been made by the Congress Party in their manifesto. JP Nadda has said that whether it's a Congress's manifesto or Muslim League's manifesto. Later in the days, Prime Minister Narendra Modi in one of the rallies has also taken a jibe at this manifesto, and all the major leaders and big leaders have been attacking this manifesto because major developments and major declarations have been done, and in the upcoming Lok Sabha elections where Bharatiya Janata Party is looking for Bahumat, and they are talking about Ab Ki Baar 400 Paar, and they are taking that nara and making that nara in those days and in these scenarios, in these situations. Congress's manifesto has created a political war between both the parties. Over to you. All right, Mehndi, stay on with us. In fact, joining us at this point of time is Congress spokesperson Anshu Awasthi. Very good afternoon to you, and thank you so much for joining us on News X. Now, after Prime Minister Narendra Modi, BJP National President JP Nadda has slammed the Congress over its manifesto, comparing it to the ideology of the Muslim League. How does the Congress respond to this? मुझे जेपी नड्डा जी पे बड़ा तरस आता है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए खुद देश को बता नहीं पा रहे हैं कि वो आने वाले 5 साल में जो चुनाव में वोट मांग रहे हैं तो वो क्या करेंगे देश के लिए। अपना घोषणा पत्र, संकल्प पत्र, जो भी कहना चाहें, जुमला पत्र ला नहीं पा रहे हैं, और वो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठा रहे हैं। इसी को गांव में कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ा। खुद अपनी गाड़ी जो व्यक्ति नहीं बचा पा रहा है, उनकी फॉर्च्यूनर चोरी हो गई राष्ट्रीय अध्यक्ष की, कि दिल्ली में सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है, और अपनी 4 पहिया की गाड़ी नहीं बचा पाए, वो देश को क्या चलाएंगे। आप समझ सकते देश को क्या संभाल के रख पाएंगे जो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी गाड़ी नहीं संभाल के रख पाए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे सवाल वो इसलिए खड़ा कर रहे हैं क्योंकि उसमें युवाओं के 30 लाख नौकरी जो खाली पद पड़े रहे भाजपा में, उनको भर्ती करने का हमने गारंटी दी है। हमने इस देश की आधी आबादी महिलाओं को, प्रत्येक परिवार की वरिष्ठ महिला को 1 लाख रुपए 1 साल में देने की गारंटी दी। हमने युवाओं को जो सबसे ज्यादा बेरोजगारी से जूझ रहा है, हमने गारंटी दी है कि ग्रेजुएशन के बाद हम इंटर्नशिप के लिए 1 लाख रुपया देंगे, जिससे वो अपना इंटर्नशिप करे और रोजगार कर सके। हमने गारंटी दी है किसानों को कर्ज माफी की, एमएसपी कानून गारंटी। तो बीजेपी तो इसलिए चिढ़ी हुई है कि हम जनता की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी इसलिए और नड्डा जी इसलिए वो दुखी हैं क्योंकि वो कहते हैं कि सिर्फ उद्योगपतियों की बात हो। कांग्रेस कहती है किसानों, आत्माआत्मी उद्योगपतियों की बात हो ना हो, किसानों की बात हो, युवाओं की। तो उनकी चिढ़न स्वाभाविक है, उनका फ्रस्ट्रेशन स्वाभाविक है, क्योंकि जनता उनको हराने जा रही। सिर्फ अडानी जी की वजह से अब चुनाव नहीं जीतेंगे। अब देश की जनता में मत बना लिया है कि जुमलेबाजों को सत्ता से बाहर करना है। Okay, all right. With that, I'd like to thank you for joining us on the broadcast, sharing your perspectives with our viewers. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.